Assalamu alaikum dear students. You know, we completed the three cases of reconstitution, and I hope you understood very well, and I hope you worked at home very well. So today we will be starting the dissolution of a firm, and last topic, last unit on partnership. You know, we completed the reconstitution, all the three cases. Now we will be discussing the dissolution of a firm. Dissolution, you know, dissolution. Dissolution means the breakup or extinction. In case of partnership, we will relate the dissolution to the breakup or extinction. You know, partnership is a relation between persons. Partnership, according to Indian Partnership Act 1932, the act says that partnership is a relation between persons. Relationship of what? Profit relation. So we discussed in this relation, when partners start business, they do business, how we prepare their final accounts, and in this relation we also studied when this relation temporarily breaks up and new relation is formed, how we proceed in that case. That was called the reconstitution. Now we will be discussing if this relation between partners is completely broken up और इज कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट. अब हम सीखेंगे कि अगर इन पार्टनर्स के दरमियान जो ये रिलेशन थी, अगर ये कम्प्लीटली ब्रेकअप हो गई. सबसे पहले हमने देखा कि जब पार्टनर रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म बनती थी. पार्टनरशिप फर्म के हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़े, अकाउंटिंग एस्पेक्ट हमने पूरा पढ़ा. उसके बाद फिर जब इसी रिलेशन को पार्टनर्स ने ब्रेकअप करके दूसरी रिलेशन इस्टेब्लिश की, उसको हमने कहा कि वो रिकन्स्टिट्यूशन होगी. तो रिकन्स्टिट्यूशन के 3 केस थे, वो भी हमने पढ़े. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. अगर हम ये अब हम पढ़ रहे हैं, अगर ये रिलेशन जो पार्टनर्स के दरमियान है ये कंप्लीटली ब्रेकअप हो गई या कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई, फिर दोबारा से ये इस्टेब्लिश नहीं होती थी. रिकन्स्टिट्यूशन में यही रिलेशन दोबारा से एक्सटिंक्ट होती, दोबारा से इस्टेब्लिश होती थी. यहाँ पर अब हम देखेंगे, अगर ये रिलेशन कंप्लीटली एक्सटिंक्ट होगी, कंप्लीटली ब्रेक अप होगी, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त जो पार्टनरशिप फर्म थी वो अब बंद होगी, वो बिजनेस अब नहीं कर सकेगी. जब रिलेशनशिप एक्सटिंक्ट हो गई, ब्रेकअप हो गई, तो बिजनेस बंद हो गई. तो हम कह सकते हैं, सिंपली वी कैन से दैट now we will be discussing when a partnership firm is closed, when the business of a partnership firm is closed. Dissolution हो गई, breakup और extinction. अब dissolution जो है, dissolution has 2 types. In case of partnership, this dissolution has 2 types. One is dissolution of partnership. Partnership is a relation. Dissolution of partnership means when partners break the relation and form another relation, form this relation again, and that was called a reconstitution of a firm. दूसरा टाइप हो गया dissolution of a firm. Dissolution of a firm means when partners break up this relation completely and this relationship extincts and firm ceases to exist, and the firm ceases to transact the business anymore. So we can say that this dissolution has 2 types. We know that partnership is a relation. Partnership is a relation. When this relation was broken up and this was re-established, we called it as reconstitution. When we break up this relation
forever and this relationship is extinct, this relationship is not re-established, we say that this is called dissolution of a firm. This was called dissolution of partnership. We can say that the reconstitution that we already studied, discussed, the reconstitution of partnership can also be called a dissolution of partnership. And when a partnership firm is not reconstituted again and the relationship is completely broken up and completely extinct, that will be called a dissolution of a firm. The first aspect of dissolution we already studied, that is called reconstitution. The first aspect of dissolution is reconstitution, dissolution of partnership. Dissolution has two types: dissolution of partnership and dissolution of firm. Dissolution of partnership, we have already discussed that. That is also called reconstitution. That has three cases, three main cases, and you also know the reasons of dissolution of partnership, reconstitution. Now we will be discussing dissolution of a firm. The second aspect of this dissolution of a firm, when this relationship is completely broken up and completely extinct and the firm ceases to transact a business. In reconstitution, the firm continued its business, and in dissolution of a firm, the firm ceases to transact the business. And now we will be discussing this dissolution of a firm. You know that firstly, before studying the dissolution of a firm, we ought to know the reasons for this dissolution. We ought to know the reasons for the dissolution of the firm. Why a firm is dissolved, why a partnership firm is dissolved, why the business of a partnership firm is closed down, why this relationship is broken up forever. What are the reasons behind it? There are so many reasons. There are so many reasons, and you can find those reasons in your book so easily. There are so many reasons, and those reasons are divided into two types of reasons. First type of reasons are categorized, and those are named as when a firm is dissolved without the order of the court. Firm has to be dissolved when there are reasons. When there are reasons, the firm has to be dissolved. When there are reasons, the firm has to be dissolved. But those reasons are categorized into two types. The first type is called when a firm is dissolved without the order of the court. Without the order of the court means when a firm is dissolved, we can say voluntarily it is dissolved. जब जो एक फर्म डिसॉल्व होती है उसके लिए रीजन होते हैं डिसॉल्व करने के लिए. जिस तरह रिकंस्टिट्यूट करने के लिए रीजंस थे, इसी तरह फर्म को फॉर एवर डिसॉल्व करने के लिए, बंद करने के लिए भी रीजंस हैं. तो रीजंस जो हैं वो डिफरेंट रीजंस हैं. उन डिफरेंट रीजंस को हम कैटेगराइज करते हैं इनटू टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड व्हेन ए फर्म इज डिसॉल्व्ड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. विदाउट, जब कोर्ट के ऑर्डर के बगैर ही फर्म को किसी भी हाल में डिसॉल्व करना है, तो उसके लिए भी कुछ रीजंस हैं. किस वक्त कोर्ट के ऑर्डर के बगैर ही फर्म को हमें डिसॉल्व करना ही करना है. दूसरा है व्हेन ए फर्म इज डिसॉल्व्ड विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. किसी वक्त कोर्ट ऑर्डर करते हैं कि फर्म को डिसॉल्व करो, कोर्ट के पास रीजंस होते हैं कि फर्म को डिसॉल्व करना ही करना है. वो रीजंस आपको, देयर आर सो मेनी रीजंस एंड यू कैन इजीली फाइंड दोज रीजंस इन योर बुक बिकॉज there are so many reasons. For example, one of the reasons is when all partners or one of the partners becomes insolvent. This is one reason. The other reason is when a partner becomes of unsound mind. Another reason is on the death of a partner. Another reason is when the partnership is at will. Any partner can file a suit or any partner can give a notice that the firm should be dissolved. So similarly, there are so many reasons to dissolve this firm, and we categorize these reasons into two types: when a firm is dissolved
विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना। तो इस तरह फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म की बिजनेस क्लोज होती है, फर्म पार्टनर्स के दरमियान जो रिलेशन होती है वो एक्सटिंक्ट होती है, कंप्लीटली ब्रेकअप होती है फॉर एवर। तो उसके बाद फर्म की बिजनेस क्लोज होती है। जिस वक्त ये फर्म की बिजनेस क्लोज होती है, जिस तरह फर्म जब रिकन्स्टिट्यूट होती थी उस वक्त हमें कुछ अकाउंटिंग फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी, इसी तरह फर्म जब क्लोज होती है, फर्म की बिजनेस जब सीज होती है, तो उस वक्त भी हमें कुछ अकाउंटिंग फॉर्मेलिटीज करनी है। एज अकाउंटिंग स्टूडेंट्स एंड एज अकाउंटेंट्स वी हैव टू डू इट। इस फर्म को क्लोज करने में हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है फर्म की क्लोज करने के वक्त, ठीक है ना। अब हम सीधा आते हैं अकाउंटिंग एस्पेक्ट की तरफ। जिस वक्त ये फर्म डिसॉल्व होती है, जिस वक्त इस फर्म की बिजनेस बंद होती है, अब हम आते हैं कुछ अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स की तरफ। तो फर्म को क्लोज करने के वक्त हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमें सबसे पहले फर्म को क्लोज करने के वक्त, डिसॉल्व करने के वक्त, सबसे पहली बात जो है एज अकाउंटेंट, एज अकाउंटिंग स्टूडेंट, सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की तरफ जाना है। सबसे पहला सेक्शन जो है, द फर्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 48 जो है इट डील्स विद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, settlement of accountants. If you go through this section, if you go through this section from your book, you will find in this section, section 48, this section deals with the settlement of accounts at the time of dissolve. अब फर्म की बिजनेस क्लोज होती है, हमें अकाउंट्स को सेटल करना है और फर्म को क्लोज करके देना है एज अकाउंटेंट, एज अकाउंटिंग स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें सेक्शन 48 की तरफ जाना है, वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स से डील करता है। तो इस सेक्शन में क्या कौन कौन सी चीज़ें, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स जिस वक्त हम करेंगे, हम कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे डिसोल्यूशन के वक्त। अकाउंट्स प्रिपेयर करने के वक्त हमें इस सेक्शन की कुछ गाइडलाइंस याद रखनी है ज़रूर। तो उन गाइडलाइंस में सबसे पहली गाइडलाइन जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। सबसे पहली बात जो है, हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस देखना है। जो ये ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस का मतलब है, अगर फर्म का कुछ लॉस हो, जिस साल हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, इस साल या कोई लॉस एक्यूमुलेट हो गया हो, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। जिस वक्त हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे, मैंने पहले ही कहा कि हम कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, हम बाद में वो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, देखेंगे कैसे प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अकाउंट्स प्रिपेयर करने के वक्त, करने से पहले हमें कुछ सेक्शंस को मद्देनजर रखना है, कुछ सेक्शंस को, कुछ गाइडलाइंस को मद्देनजर रखना है। सबसे पहली गाइडलाइन जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 48, वो है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अगर इस फर्म का कोई लॉस हो, इस साल का कोई लॉस हो, करंट ईयर का, या कोई लॉस एक्यूमुलेट हो गया हो, उसको कैसे ट्रीट करें। तो सेक्शन 48 कहता है ये जो लॉसेज हैं इनको मीट आउट करना है हमें। सबसे पहले मीट आउट करना है अगर कोई प्रॉफिट हो, अगर हमारे पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कोई भी प्रॉफिट की बैलेंस हो, सबसे पहले हमें फर्स्टली दीज लॉसेज शुड बी मेट आउट थ्रू प्रॉफिट्स। अब अगर हमारे पास प्रॉफिट है, अब वो प्रॉफिट कम पड़ गए इन लॉसेज को मीट आउट करने के लिए, तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमें वो आउट ऑफ कैपिटल मीट आउट करनी चाहिए, आउट ऑफ कैपिटल। उसके बाद भी अगर कैपिटल से भी मीट आउट करके हमें कुछ लॉसेस रह गए मीट आउट करने, उसके बाद हमें पार्टनर से वो इंडिविजुअली लेने हैं, पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा लॉसेस। दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइन अंडर सेक्शन 48 एंड द नेक्स्ट गाइडलाइन अंडर सेक्शन 48 इज दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, जब हमने लॉसेस भी मीट आउट किए इस फर्म के, सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉसेस करने मीट आउट। फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन आउट ऑफ कैपिटल एंड नेक्स्ट फ्रॉम द पार्टनर्स इंडिविजुअली।
एंड देन उसके बाद सेटलमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। तो अब हमें देखना है एसेट्स को अप्लाई करना है। तो एसेट्स को हम ऐसे कैसे अप्लाई करते हैं, तो अब सेक्शन 48 जो है इट टेल्स अस अबाउट हाउ शुड वी अप्लाई दीज एसेट्स, द एसेट्स ऑफ द फर्म। वी नो दैट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जो हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करने के वक्त, ये फर्म स्टार्ट करने के वक्त जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन की थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या जो इस पार्टनरशिप की अकाउंटिंग इक्वेशन है, हमने लायबिलिटीज और कैपिटल बिजनेस में क्यों की थी, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। इस वक्त जब फर्म क्लोज होती है तो इन एसेट्स को रियलाइज करना है ताकि हम लायबिलिटीज मीट आउट करके फिर लायबिलिटीज मीट आउट कर सकें और पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स ने भी जितना कंट्रीब्यूट किया है वो भी मीट आउट कर सकते हैं। तो एसेट्स को हमें रियलाइज करना है। इस वक्त सबसे पहले जिस वक्त हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी या जब हम बिजनेस कर रहे थे तो हम इन एसेट्स के लिए सब कुछ करते थे। फर्म में जितना भी इन्वेस्ट होता था या कोई भी लायबिलिटी इनकर होती थी वो किस लिए होती थी, एसेट्स के लिए। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन द बिजनेस टू जनरेट बेनिफिट्स। इस वक्त जब फर्म को क्लोज डाउन करना है तो एसेट्स को रियलाइज करना है। एसेट्स को रियलाइज करके जितना भी अमाउंट हमें मिलेगा उस अमाउंट में से एसेट्स को बिजनेस में लाने के लिए हमने कुछ खुद इन्वेस्ट किया था, कुछ हमने लायबिलिटी इनकर की थी, ये दोनों चीजें मीट आउट करनी। तो एसेट्स को कैसे अप्लाई करते हैं रियलाइज करके, जब हमने एसेट्स को रियलाइज किया तो उन एसेट्स को अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एसेट्स को रियलाइज करके फर्म के डेट्स पे करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 वी पे द डेट्स ऑफ द फर्म। उसके बाद अगर कुछ बच गया एसेट्स से, जितना अमाउंट हमने रियलाइज किया, अगर कुछ बच गया तो जितना अमाउंट बच गया उसमें से हम देखते हैं किसी पार्टनर ने इस फर्म को कुछ एडवांस या लोन मत दिया था तो वो मीट आउट कर दें, एडवांसेस या लोन। अगर उसमें से भी फिर कुछ बच गया इन एसेट्स में से, ये मीट आउट करके फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल वापस कर दें। फिर अगर कुछ बच गया तो वो पार्टनर्स के दरमियान बांटते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब है जब हमने इन एसेट्स को रियलाइज किया तो रियलाइज करके जितना भी अमाउंट हमारे पास आया, इस अमाउंट में से हमें क्या क्या मीट आउट करना है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, क्योंकि इन एसेट्स को बिजनेस में लाने के लिए हमने लायबिलिटी इनकर की थी और कैपिटल इन्वेस्ट किया था। तो लायबिलिटीज, सबसे पहले हम लायबिलिटीज करते हैं मीट आउट। लायबिलिटीज ये दोनों अगर हम देखेंगे ये लायबिलिटीज हैं, डेट्स एंड एडवांस। उसके बाद हम कैपिटल मीट आउट कर दें, ठीक है ना, इस अमाउंट में से। उसके बाद अगर कुछ बच गया तो पार्टनर्स के दरमियान बांटते हैं। सेक्शन 48 सेज एज दिस एंड देन इसके बाद सेक्शन 48 के बाद हमें एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन याद रखना है, वो है सेक्शन 49, दैट इज सेक्शन 49। सेक्शन 49 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें मद्देनजर रखने की जरूरत है, दैट वी हैव टू कीप इन व्यू, दैट वी हैव टू कंसिडर ड्यूरिंग दिस डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो सेक्शन 49 जो है, सेक्शन 49 सेज अस इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फर्म's debts and private debtors, firm's debtors and private debtors. This section tells us about how we will deal with firm's debts and private debtors. अब ये सेक्शन कहता है कि हम अगर डेटर्स देखेंगे पार्टनरशिप में तो कुछ डेटर्स फर्म के होंगे, कुछ डेटर्स पार्टनर्स के प्राइवेट डेटर्स होंगे। दिस सेक्शन सेज अस फर्स्टली ये सेक्शन कहता है जो हमारे पास अमाउंट होता है डेटर्स को मीट आउट करने के लिए, एसेट्स को रियलाइज करके जो हमारे पास अमाउंट आ गया, यानी डेटर्स को मीट आउट करने के लिए टोटल डेट, फर्म्स डेट्स प्लस प्राइवेट डेटर्स मीन्स टोटल डेटर्स को मीट आउट करने के लिए जो हमारे पास अमाउंट मौजूद है, उस अमाउंट में से सबसे पहले फर्म्स डेटर्स को मीट आउट करो। फर्स्टली मीट आउट फर्म्स डेटर्स। अगर वहां पर कुछ अमाउंट रह गया देन मीट आउट, ठीक है ना,
अगर कुछ अमाउंट बच गया तो पार्टनर्स उस अमाउंट से अपने प्राइवेट डेटर्स मीट आउट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें फर्म के डेट्स को मीट आउट करना है। तो दूसरी बात जो है ये सेक्शन कहता है, दिस सेक्शन 49, द सेकंड थिंग दैट इट टेल्स अस इज दैट जो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको सबसे पहले पार्टनर्स को क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी से प्राइवेट डेटर्स मीट आउट करने चाहिए पार्टनर्स को सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उससे प्राइवेट डेट्स मीट आउट करने चाहिए। फिर अगर उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में से प्राइवेट डेट्स मीट आउट करके अगर कुछ बच गया तो फिर सरप्लस जो बचता है उससे वो फर्म के डेट्स मीट आउट कर सकता है, बिकॉज वी नो दैट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। ठीक है ना, अगर मतलब ज़रूरत पड़ी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है अगर ज़रूरत पड़ी फर्म के डेट्स को मीट आउट करने के वक्त अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से फर्म के डेट्स को मीट आउट करना चाहिए। लेकिन रूल ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी से पहले उसको अपने प्राइवेट डेट्स मीट आउट करने चाहिए। अगर कुछ बच गया तो फिर अगर जो अमाउंट बचता है हमारे पास सरप्लस, उससे वो फर्म के डेट्स को मीट आउट करता है। तो सो दिस वाज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, a brief discussion on the dissolution of a firm, and in the next lecture we will be starting the preparation of different accountants during this reconstitution. I hope you understood very well. Thank you.